you so much, ma'am. Belated Happy Diwali. I saw you were, traveling and still you find this time to join us. No, So thank you so much for coming. And let's start, but let me first introduce you first to our audience के who you are. And I know almost सब जानते ही होंगे आपको यहाँ पर, who don't know you, but life और लोग हमें आसपास एक रूल्स देते हैं कि आपको इन रूल्स को फॉलो करना है, बट इट टेक करेज टू से नो टू दूस रूल्स एंड मेक योर ओन रूल्स. एंड वन दैट पर्सनैलिटी टुडे इज हेयर विद अस, जिन्होंने बोला कि मैं इन रूल्स को नहीं फॉलो करूंगी, I am going to make my new rules. And then she is teaching women to कि अपने rules खुद बनाओ. And when I see you on Instagram, how you are teaching women on this next level, it's so feel good, and it takes really take courage. Everyone, we know with how much courage it takes कि अपने दूसरों के rules को ना बोलकर अपने rules को लेना. And so here we have coach, she says self love coach, Meenal ma'am with us. So welcome, ma'am. thank you so much, Drishti, for this beautiful introduction, and it means a lot. I see you on Instagram how you teach women that कि ये करो, and the way you talk, like मैंने आपके एक बीच में एड देखी थी जिसमें आप ऐसे बोल रहे थे कि दुपट्टा पहनते हो, मम्मी मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, ये भी काम नहीं करूंगी. एंड द वे यू पुट इट आउट वो इतना जेन्युइन लगता है ना कि देखने में मजा आता है कि वाओ दिस इज अमेजिंग. Wow, wow. So yes, I think you are married to a Sindhi family, Yes. right? Yes. So how's it's been? How was the Sindhi, insight? To be very honest, Drishti, I always tell this to everyone. It's a learning process, right? Yeah. So I was so much in love with my boyfriend. Now today he's my husband. कि मुझे intercaste. I told you कि मैं society के और culture के rules तो follow करती ही नहीं हूँ. So मुझे तो कभी ये था ही नहीं कि intercaste है. But the surrounding were always telling me, yeah, it's a intercaste. It's a intercaste. हमारे यहाँ ऐसा होता है, आपके यहाँ वैसा होता है, हमारे घर ऐसा होता है. I used to listen this. Yeah. Right. Was totally, to understand that it is the mindset of the people to understand that we are different. But जितना मैंने खुद पे work किया, मुझे समझ में आने लगा कि नहीं, ultimately we are one. But जो societal beliefs है, cultural beliefs है, religious beliefs है, वो हमें डिफरेंस दिखाते हैं. बात सब यही करते कि हम सब एक है, लेकिन वो छोटी छोटी चीजों को लेके, and you know why people behave like this? To show that yes, I'm important, हमारा सब अच्छा है. ये फिर थोड़े दिन बाद बचपना लगने लगता है. करेक्ट. Ignoring. Of course, दृष्टि, पहले मैं भी इरिटेट होती थी, मुझे भी हर्ट होता था, पर वो सब इसलिए था क्योंकि God wanted me to be a self-love. Correct. No, like I am also Sindhi, so I have seen women around कि कैसे उनको वो एक केज में बंद करने की कोशिश की जाती है, that ये रूल्स फॉलो करने ही हैं वरना तुम अच्छी बहू नहीं कहलाओगे. And I always feel that no, it's wrong. And then I saw your live जो आप मास्टर क्लास लेते हो, I was part of it, and I saw it कि कैसे आप explain कर रहे थे कि how you chose your boyfriend over the job career, and then also we do like हम वही as a woman we do कि हम अपने करियर को छोड़ के अपने पार्टनर को चूज कर लेते हैं, and then we regret it somehow. You were telling it, but I think that was the beauty of it कि अगर आप वहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड को चूज नहीं करते तो आज शायद जो थाउजेंड ऑफ वुमेन्स आपके थ्रू सेल्फ लव सीख रही हैं वो नहीं हो पाता. Yes, it's always a journey. So we have to learn. Actually, कोई भी religion, culture या society बुरा तो नहीं है, उनके अपने rules and regulations है. It is up to you how much you want to fit in. So if you go ahead, if you feel no, this is something which is not resonating with me, मुझे करना है, but be real. आपको वो पहले आप accept करो खुद को. दूसरा बनने की कोशिश करते कि इनको मैं अच्छी लगनी चाहिए, हमें खुद को हम अच्छे लगने चाहिए. Correct. Wow. So like आज का जो टॉपिक है हमारा that is self love. So let's start with you कि आप बताओ कि आपके लिए self love की definition क्या है जो आपने खुद के लिए create की है. Yes. So till many years being a woman, हमें बहुत सारी conditioning दी गई रहती है. As you said that आपको एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी बेटी, एक अच्छी माँ, and all the roles and responsibilities हमें play करना है. एंड कहीं ना कहीं हमें एक गुड गर्ल का टैग भी दिमाग में रहता है कि मुझे अच्छा बन के जाना है. बहुत सालों तक मैंने भी यही किया.
करेक्ट, हर किसी को यस 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 करती रही। सो दृष्टि, इस पूरी जर्नी में मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज होने लगा था कि मैं खुद को खोती जा रही हूँ। करेक्ट। And when I started working on myself, when I started exploring myself, when I started asking myself important questions कि मीनल इस planet पे तुम कर क्या रही हो, तुम क्यों आई हो इस planet पे, तुम्हें चाहिए क्या है exactly, कौन सी चीज तुम्हें खुशी देती है। Why दृष्टि? Because मैंने सोचा शायद ब्रांडेड कपड़े पहनने से वो खुशी मिलेगी, महंगी कारों में घूमने से खुशी मिलेगी, वो एंड ऑफ कोर्स मैं सब करती भी हूँ, लेकिन वो खुशी नहीं मिलती थी जो अब वो असली खुशी। राइट। ओके, आई विल नॉट आस्क हियर एनीवन नॉट टू डू दोस थिंग्स, प्लीज करो, हर चीज करके देखो, तभी तो पता चलेगा रियल खुशी कहाँ है। करेक्ट। तो सेल्फ लव मेरे लिए नंबर 1 है। मैंने सेल्फ लव को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फॉर मी द फर्स्ट इज एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ। ओके, आप जो हो पहले वो अपने आप को एक्सेप्ट करो, मींस अपने नेगेटिव्स और अपने पॉजिटिव्स। हमारे बहुत सारे शैडो पार्ट्स है जो हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते, राइट, छुपा के रखते हैं। हमें पता है दुनिया देखेगी तो देन दे विल जज अस, दे विल मेक फन ऑफ अस, लेकिन वो नेगेटिव पार्ट्स भी जरूर है। एक बार आपकी नेगेटिविटी एक्सेप्ट कर ली ना, तो आपको कोई फिर उसके यूज नहीं कर पाएगा आपके अगेंस्ट। The second thing is to know who you are really. And when I say who you are, जो हमारे thoughts है, हमारे emotions है, हमारे behavior है, वो हम है नहीं, इसने accumulate किया है from our environment. डेफिनेटली चेंज हुआ जा सकता है। अगर ये थॉट मेरे लिए अच्छा नहीं है तो आई शुड बी अवेयर कि मैं इस थॉट को रिप्लेस करूं या रिफ्रेम करूं। ये मैंने चीज तो फर्स्ट एक्सेप्टिंग, सेकेंडली नोइंग हु यू आर। और जब आपको पता चल जाता है कि आप ये इंसान, आप ये हो एंड ये नेगेटिव्स है, फिर अपने ऊपर वर्क करना शुरू करो। दिस इज ब्यूटीफुल जर्नी। अपने आप को सुधारना सबसे बड़ा टास्क है। लेट मी बी, इस प्लैनेट पे मैक्सिमम प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि हम दूसरों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। वाओ, बलबॉन मूवमेंट। Yes, and this is what triggers us a lot. So you have, if you start, and to be very honest दृष्टि, इतनी women के साथ वर्क करने के बाद तो मुझे और ये क्लियर हो गया, it is so much easy कि अपने पे गिव अप कर दो। ठीक है यार, इनके साथ ही रहो, रोते गाते भी रहो, ब्लेम भी करते रहो, but I do not want to change myself. Because changing yourself is a very difficult task. So this is the definition for me. आई थिंक आपने इतना ब्यूटिफुली पूरा लाइफ कोचिंग एक्सप्लेन कर दिया इन 3 पॉइंटर्स कि लोग हमेशा दूसरों को सुधारने पे लगे होते हैं कि उसने ऐसा किया इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, एंड हम हमेशा विक्टिम जोन में आ जाते हैं। बट सेल्फ लव इज समथिंग टेकिंग अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ, कि खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, पहचानो तुम कौन हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो एंड वर्क ऑन इट। एंड that's the beauty of I think life coaching as well, because वो हमें कहीं ना कहीं सिखा रहा है कि टेक द पावर बैक, जो हम दूसरों को इतनी पावर्स दे के रखे, स्पेशली सब वुमेन जो हम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वी आस्क इट बैक सो ब्यूटिफुली यू एक्सप्लेन। बट नाउ आई वांट टू नो दैट ये सब सीखने के बाद जो आपने आपने अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो हाउ योर लाइफ चेंज्ड, आपके रिलेशनशिप, आपके पर्सनल लाइफ में क्या चेंज आए? नंबर 1, मैं बहुत अवेयर हो गई थी कि मैं कैसे रिएक्ट करती हूँ हर चीज को लेके, राइट। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे अंदर बहुत टाइप्स के ईगोज रहते हैं जो मैं जरूर सिखाती हूँ। तो और कोई भी इंसान अपने सारे ईगोज को इमीडिएटली रिमूव नहीं कर पाता, इट टेक्स टाइम। सो किसी ने कोई कमेंट किया तो बिना सोचे समझे मैं जैसे इमीडिएटली मैं रिएक्ट कर देती थी, गुस्सा कर देती थी, कुछ उल्टा बोल देती थी। नाउ आई अंडरस्टूड, उन्होंने बोला है तो एटलीस्ट लेट मी टेक अ पॉज, अरे तो इमीडिएटली रिएक्ट करूं। और जब हम रिएक्ट नहीं करते ना दृष्टि, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इवेंट्स की कोई वजूद ही नहीं रहता। इट कीप्स नो वैल्यू व्हेन यू डोंट रिएक्ट। सो बोला आप अपने रास्ते में निकल जाओ, यू डोंट नीड टू शिफ्ट एंड गिव आंसर्स टू एवरी पर्सन हियर। तो इम्प्लीमेंटेशन जब मैं कर रही थी, ऑफ कोर्स सबको ऐसा लगता था कि अरे इसको तो अब ज्यादा समझ में आने लगा है। एंड यू नो, आई थिंक यहाँ पे बहुत सारे लोग जो सुन भी रहे, उनको ऐसा लगता होगा लाइफ कोच है तो गुस्सा नहीं आता होगा, लाइफ कोच है तो दुख नहीं होता होगा। अरे लाइफ कोच इज ऑल्सो ह्यूमन बीइंग। गुस्सा आता है, दुख होता है, बट नाउ आई नो द वेज कि मैं गुस्से को कैसे रिफ्रेम कर सकती हूँ। नाउ आई नो द वेज कि मैं कैसे, और मुझे पता है कि गुस्से को एक्नॉलेज करके अपने स्पेस में से निकालना जरूरी है। तो मैं उस इंसान पे गुस्सा नहीं करती हूँ, पर मेरे पास टेक्निक्स है उस गुस्से को निकालने की। वाओ,
गुस्सा तो निकालना ही है ना, मैं इस अपने बॉडी में तो नहीं रख सकती, नहीं तो यहाँ दर्द यहाँ दर्द यहाँ दर्द, बिकॉज हाँ शो करना शुरू कर देगी. सो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सैडनेस, ये सब इमोशंस तो हम भी फील करेंगे राइट बींग्स. सो मुझे याद है कई बार कोई ऐसा बोलता भी है, व्हेन यू आर वर्किंग, व्हेन यू हैव अ टीम, तो कई लोग ऐसे बोलते हैं आप लाइफ कोच हो, फिर आप इतना इस तरह से आप क्यों प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि बीइंग अ लाइफ कोच के साथ भी मैं सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्ले कर रही हूँ. राइट द वे वाज डिफरेंट. मुझे जिस पे गुस्सा करना था उस पे ही कर देती थी. अब मैं करते हुए I implemented techniques and I released the anger. वाओ Are you understanding? अगर मुझे दुख हो रहा है तो मैं लिख के या तो बिल्कुल लिटरली बैठ के रो के निकाल लूंगी. Correct? राइट These are the techniques to release out. अपने अंदर नहीं रहने देना. राइट एंड आई थिंक दैट्स व्हाई वुमेन आर सफरिंग अ लॉट टुडे बिकॉज वो अपने अंदर ही दबाती हैं और फिर बाद में इरिटेशन चिड़चिड़ करना उनका उनके फिर वो बाद में गुस्सा कहीं का गुस्सा कहीं और निकलता है. Yes. And then they end up in anxiety, depression. राइट राइट करेक्ट सो व्हेन यू वर इन योर जर्नी आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए लाइक आपको क्या क्या आपकी लाइफ में बर्ल बॉर्न मोमेंट्स थे क्या क्या चैलेंजेस थे वर फेसिंग व्हेन यू वर ऑन योर जर्नी. सबसे बड़ा बलवान मोमेंट तो ये है, जो मैं सब, अगर वुमेन मुझे सुन रही हैं और अगर मेन भी, दिस इज योर लाइफ, दिस इज योर जर्नी. जो भी आएगा ना उसको सिंपल फेस करो और आगे बढ़ते जाओ. डोंट स्टिक टू इट बिकॉज इट इज योर टेस्ट. टेस्ट तो लेगा यूनिवर्स. सो व्हेन यू आर ऑन द इवोल्यूशन जर्नी, आप बोलोगे रे यार मैंने कुछ नया स्टार्ट किया और कितने हर्डल्स आ रहे हैं, तो यूनिवर्स ऐसे उठा के क्यों देगा? ही विल चेक इट कि तुम उस लायक हो कि नहीं हो. राइट. सो चैलेंजेस न सोचते हुए, दृष्टि, ये मेरे लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आया. जब भी मैं भी बैठती और कभी सोचती ये चीज ऐसी हो गई थी, तो मैंने अपने माइंड को और अपनी बॉडी को ये प्रैक्टिस और ट्रेन किया है कि जो हो रहा है, ओ वाओ, ये मेरी एग्जाम है और मुझे अच्छे से क्रॉस करना है जो हो रहा है. सो यू हैव टू ट्रेन योरसेल्फ लाइक दिस. वी आर टू ब्लेम, वी आर ट्रेन टू से, अरे यार ये काम ही नहीं किया. नहीं नहीं, वो काम किया, मतलब अगर वो चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं हुई है तो भी काम हो रहा है. ट्रू लाइक यू लर्न द पावर ऑफ सरेंडर कि सरेंडर कर दो जो हो रहा देखा जाएगा. लेकिन दृष्टि, पहले भी ये जर्नी भी फर्स्ट डे वाली लाइफ कोचिंग नहीं थी. इट टेक्स टाइम. सो जैसे कई बार अभी जैसे मैं अभी ही ट्रैवल कर रही थी, तो 2-3 बार ऐसा हुआ कि हमने सडनली प्लान किया चलो एक दिन पहले वापस चले जाते हैं. कुछ एक दो चीजें, बट हम हमेशा अपने मन में मैं एक ही बोलती थी, ओ वाओ ये रूम नहीं मिला तो ये रूम गॉड मुझे यहाँ भेजना चाहता था. तो मतलब एक और एक्सीलेंट अपग्रेडेड रूम में पहुंच गई. मैं फ्लाइट में जा रही थी तो मैं सोचती अरे यार अभी शिफ्ट तो और अमेजिंग, वो जो मेन वो जो गेट्स ओपन होने वाला जो सेफ्टी होता है वो वाला स्पेस मिल गया. सो सरेंडर की पावर आपको तब पता चलती क्योंकि लोग पता है बोलते मैंने सरेंडर कर लिया, मुझे फेथ है, लेकिन क्रिप करेंगे. ऐसा कुछ हुआ नहीं कि डाउट करते. करेक्ट. वाह तब आते हैं कि 2 मिनट ऑब्जर्व करके तो देखो कि अगर उसने ये नहीं दिया तो ये कितना अच्छा दे दिया. एंड जो दिया है अगर आपको लगता है वो आपके हिसाब से नहीं हुआ, बट ही नोज व्हाट इज बेटर फॉर यू. ये टाइम आता है. वाह आई थिंक ये आपने बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि लोग सरेंडर तो आजकल हर कोई बोलता है मैंने सरेंडर कर दिया बट स्टिल दे विल बी लाइक इसकी बुराई कि ऐसा क्यों हो रहा है ऐसा तो नहीं मांगा था. बट देन इट्स लाइक कि व्हेन यू आस्क समथिंग यूनिवर्स फर्स्ट टेस्ट यू एंड देन गिव यू. दिस टाइम always give by an example कि दृष्टि हम 3 to 4 years के बच्चे को मर्सिडीज की चाबी नहीं देंगे. करेक्ट. No. So for him, if I'm not capable of doing that task which he has planned for me, he's going me to train in that way कि मैं handle कर पाऊँ. Wow, this is beautiful, I think. And here someone is asking that how to release anger without taking out on others. हाँ, so there is beautiful 2 techniques. Number 1 is pillow technique. Okay, आप एक पिलो लो जिस पे गुस्सा आ रहा है, या तो उसका फोटो लगा दो या उसका नाम लिख लो और बढ़िया डुशुम डुशुम करके इफ यू वांट टू अब्यूज, इफ यू वांट टू स्पीक समथिंग, लेकिन उस पिलो पे निकाल लो. करेक्ट, क्योंकि जो हमारे अंदर था वो हमने निकाल ही लिया ना. इफ यू वांट टू से समथिंग, इफ यू वांट टू हिट,
अगर हम उस पर्सन से करते तो झगड़ा हो जाता. सो नंबर 1 इज पिलो टेक्निक. नंबर 2 इज द बेस्ट टेक्निक विच इज कॉल्ड मूवमेंट. इसको हम सोमैटिक एक्सरसाइजेस से भी कर सकते हैं. जब हम गुस्सा करते हैं तो हम यहाँ से एकदम शूट अप हो जाते हैं, राइट, और हम कंट्रोल में नहीं रहते, हम कुछ भी करना चाहते. सो बेस्ट इज द मूवमेंट. हम जैसे मूवमेंट्स में आते हैं हम बॉडी में आ जाते हैं. और बॉडी में, फॉर बेस्ट एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन डॉग्स ऐसे शेक करता है जब उठता है तो कुछ खिलाता है ना. सो ऐसे ही हमें भी अगर एंगर आ रहा है तो सेकंड टेक्निक है मूवमेंट ऑफ योर बॉडी. प्लीज मूव. उस जगह से हट जाओ, या तो फटाफट अपने शूज पहन के घर से बाहर ही निकल जाओ जॉगिंग पे. कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो बाथरूम में जाके दरवाजा क्लोज कर करके शेकिंग स्टार्ट कर दो, बट रिलीज इट आउट. तो मूवमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड जितने लोग मुझे सुन रहे, मेरी बेस्ट प्लेस तो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं बेडरूम में ही हस्बैंड के साथ, अब तो मैं फटाक से आई रन टू वॉशरूम ओनली. that is the safe space, because it is just a microsecond. अगर आपने माइक्रोसेकंड में स्पेस चेंज कर दी ना, उनका गुस्सा भी ठंडा हो जाएगा, आपका भी हो जाएगा, बट उस I में वहां नहीं रहना है. सो 2 टेक्निक्स जिसने भी लिखा है, मूवमेंट, मूव योर बॉडी, एंड सेकंड इज द पिलो टेक्निक. गुड टू गो और बहुत अच्छी है. दिल खोल के बोल देना उस तकिया को जो जो बोल. Wow, amazing, amazing. I hope Sharmista ma'am, you got your answer. Yeah, she's giving a thumbs up. Amazing. So, while on your journey, आपको तो बहुत सारे ऐसे सेल्फ लव के ओपिनियंस लोग देते होंगे when you started कि क्या सेल्फ लव एंड ऑल दुनिया भर का. So, what were your misconception you heard कि लोग जो बता रहे हैं आपको कि सेल्फ लव ऐसा होता है, ऐसा, like one such example is कि सेल्फ लव is मैं अभी selfish. तो यही बोलने वाली थी. that's a one misconception always everyone says. और ऐसा क्या है जो आपने सुना है and you are like क्या सोच रहे हैं लोग and you want to change it, like आप उसका बताना चाहोगे कि उसका चेंज क्या है? मैं एक चीज तो बता सकती हूँ, सेल्फिश होना जरूरी है अगर सेल्फलेस बनना है. ये मैंने ओपरा विनफ्री का एक कोट पढ़ा था, और ये तब मुझे समझ नहीं आया था. तब मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल देती थी, ठीक है, दैट यू हैव टू बी सेल्फिश टू बिकम सेल्फलेस. विद टाइम आई अंडरस्टूड, अगर मैं ही इतनी अच्छी नहीं हूँ कि खुद को प्यार नहीं कर सकती, किसी और को क्या दूंगी. मेरे उसको प्यार थोड़ी मिल रहा है, मेरी तरफ से एंगर मिल रहा है, चिड़चिड़ मिल रही है, मेरा ब्रोकन वर्जन मिल रहा है. खुद को अच्छा बनाना, लेट मी टेल यू दृष्टि, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम. मैं क्यों किसी से इतना एक्सपेक्ट करती थी, मैं क्यों हमेशा दूसरों से उम्मीद करती थी कि वो मुझे करके दे, वो मुझे सपोर्ट करें, वो मेरे लिए वो स्पेस क्रिएट करें. मैं खुद के लिए नहीं वो क्रिएट कर सकती थी. यू क्रिएट इट फॉर योरसेल्फ. लेट मी टेल यू, जो सच में आपकी लाइफ में रहने लायक लोग हैं वो यूनिवर्स रहने ही देगा. सो सेल्फ लव मीन्स you have to be so much in connection with yourself so that you come to this clear observation that everyone is same. Right. तो फिर आपको बुरा ही नहीं लगेगा ना. फिर मुझे दृष्टि की किसी चीज का बुरा ही नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे पता है मैं वही हूँ. बट इट टेक्स टाइम दृष्टि. Like while we were talking na ki you have to be selfish to be, you know, give love, it can actually, we can see it on your face the way you are talking about this self. वो झलकता है ना एकदम, वो actual पूरा झलक के आ रहा है the way you are talking, the way you are smiling. So I think that's the thing कि आप जब बोलते हो तो लोग, people can get the energy कि आप जो बता रहे हो, they get it कि आप जो बोल रहे हो वो बस बोलने के लिए बोल रहे हो कि सच में आप खुद भी मानते हो उस चीज को. So I can get to feel it. और दृष्टि में एक और पॉइंट बोलूंगी विमेन के लिए स्पेशली. सेल्फ लव मतलब आप में इतना कंपैशन होना चाहिए खुद के लिए कि आप सामने वाले को बहुत प्यार से ना बोल के वहां से हट जाओ. करेज, कंपैशन होना चाहिए. ये शिट मैं नहीं ले सकती. Right. बट लाइक लेट्स से इफ कोई वुमन है जो जस्ट अबाउट, वो आपका देख रही है लाइव या आगे देखेंगे, एंड दे जस्ट अबाउट टू स्टार्ट, दे वांट टू चेंज देयर लाइफ, लेकिन अभी वो उसी विक्टिम जोन में है, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे सिंपल चीज, लिखना शुरू करो. लिखना मीन्स अपने आप से ये 3 क्वेश्चन पूछो, असली में मुझे कौन सी चीज खुशी देती है. वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर सो मेनी इयर्स मुझे ऐसा लगता था कि ब्रांडेड चीजें खरीदना, अच्छे होटलों में जाना, यही खुशी देता है. ठीक है, तो मैं अच्छे होटल में जाके भी झगड़ा करके रो देती थी, अच्छे कपड़े पहन के भी झगड़ा हो जाता था. टुडे अभी भी मैं वो सब ब्रांडेड चीजें ही करती हूँ, बट नाउ आई नो एग्जैक्टली कि होना क्या चाहिए. राइट, दिस डिफरेंट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ.
सेकेंडली जो एक चीज, तो पहले अपने आप से हमेशा पूछो मुझे असली में खुशी क्या देता है, ठीक है। नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, मुझे लाइफ से चाहिए क्या है। और राइट ये डीपर क्वेश्चन के आंसर 1 मिनट में नहीं मिलते, करेक्ट। और थर्ड, अपने स्ट्रेंथ्स देखो। आज ही मेरी एक क्लाइंट है, वो बोल रही थी कि मीनल मुझे मेरे स्ट्रेंथ्स ही नहीं याद आते, हमेशा मैं अपने आप में नेगेटिव देखती हूँ। तो आपके अंदर अगर एक भी चीज अच्छी है ना, प्लीज उस पर फोकस करो। हम सिर्फ नेगेटिव को देख के बढ़ाते जाते करेक्ट लाइफ में 4 नेगेटिव्स हो और 10 पॉजिटिव्स हो, लेकिन आपने 4 को इतना बड़ा करके रखा है। एंड दैट्स व्हाई हियर कम्स ग्रैटिट्यूड। द पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड इज सो ट्रू ब्यूटीफुल, जो में नहीं सिखाया गया। हम प्रे करते थे तो हमको ये सिखाया गया प्रे करना है तो गॉड से मांगो। उल्टा, प्रे करना है तो पहले गॉड को थैंक यू कर दो। वाओ तो ग्रैटिट्यूड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो मे बी लेट मी गिव एन एग्जाम्पल कि कोई विमेन को ऐसा लग रहा होगा कि अ वेरी नॉर्मल एग्जाम्पल कि मेरी मम इन लॉ से नहीं पटा, ओके, but she has a very good husband, she has a very good father-in-law, she has an amazing house, she has beautiful kids, she is physically fit, वो सारी luxuries जी रही है। तो बस एक उस चीज को थोड़ा साइड में करके पहले बाकी चीजों के लिए तो थैंक यू करना शुरू करो। राइट तो one thing को पकड़ के, so the power of gratitude scientifically proven है that once you come to the gratitude space, आपके अंदर chemicals release होते हैं which are happy hormones। राइट तो क्योंकि हम अंदर से फील करते हो वाओ मेरे पास इतना कुछ है, और नहीं तो हम एक ही चीज को मेरे पास कुछ भी नहीं है। ट्रू ट्रू सो दैट मीन्स कि इफ यू आर अबाउट टू स्टार्ट या फिर आप थोड़ा अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हो, तो आई थिंक मीनल मैम ने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया हाउ यू कैन एक्चुअली स्टार्ट। आस्क योरसेल्फ कि क्या चीजें जो आपको सच में खुशी देती है एंड बी ग्रेटफुल अबाउट इट। ग्रेटिट्यूड एंड बीइंग हैविंग अ माइंडसेट ऑफ अबंडेंस आपकी लाइफ में बहुत चेंज ला सकता है। एंड I think someone, Shahnaz, is asking, does this count for your soulmate as well? सोलमेट मीन्स, पहले तो टू बी वेरी ऑनेस्ट आई डू नॉट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोलमेट। आपका सोलमेट आपकी एक लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, आपका पेट भी हो सकता है, एक ट्री भी हो सकता है। बट हर क्वेश्चन इज दैट सोलमेट से क्या रिलेटेड, सो कैन शी मेक हर क्वेश्चन मोर Yeah, क्लियर। she is writing hubby. Actually, we're not able to understand this question. Can you, ma'am, want to say something? यू आर आस्किंग मी? I think she's asking the same questions. जो questions आपने पूछे बताए अभी, शायद she's asking कि यही questions हम उनके लिए भी कर self love. Like your partner can also apply the self Of love. course, yes, of course. Even men, women, everybody needs to love themselves. Everyone. Right. Why I work with women? Because for 10,000 years, I feel that women को इस mindset में रखा है that she is here for others. Right. So that is a male dominating society. हम ना किसी मेल को नीचे गिराना चाहते, ना हम अपने आप को सुपीरियर दिखाना चाहते, हम एक दूसरे के लिए हैं. So we have to put, and this is only possible when a male feels complete in himself and a woman feels complete in herself. Wow. एक incomplete whole हो ही नहीं सकता. True, true. Whole definitely आपका partner भी happy ही feel करेगा. I think this is very beautifully said कि दोनों जब आपस में अपना वर्क करते हैं, अपना सेल्फ लव पूरा कर लेते हैं आप खुद में, तभी वो एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बना सकते हैं। एंड here if anyone wants to ask something you can ask, but till then I really want to know ma'am, I see your stories कि आप बॉन्डिंग में अपना एक वर्कआउट प्लान आपका रूटीन रहता ही है, बट आपसे मुझे पर्सनली जानना है कि व्हाट इज योर मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन, हाउ डू यू फॉलो योर डे? मेरा morning routine is the Sever Techniques by Hal Heldrod. If you want, everybody can read by Hal Heldrod, Sever's Technique. S stands for silence, A stands for affirmations, V stands for visualization, E stands for exercise, R stands for reading, and S stands for scribbing. So ये सारी चीजें मैं सुबह करती हूँ. सबसे पहले meditation, then exercise, देन बैठ के मैं पहले जर्नलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे जो जो अच्छा अच्छा फील करना रहता है, लिखना रहता है, सब फटाफट लिख देती हूँ. एंड देन रीड करती हूँ मैं कुछ. अगर कई बार मैं मॉर्निंग में रीडिंग मिस कर दी, एक थोड़ा सा भी कुछ अच्छा, देन नाइट में तो मेरा फिक्स है रीडिंग. नाउ नाइट रूटीन इज आई रिफ्लेक्ट ऑन द डे, हाउ आई बिहेव्ड, व्हाट वर माय एक्शंस, एंड नेक्स्ट डे मुझे क्या करना है, दैट आई ग्रेटफुल फॉर टुडे,
and this is always given to my community also. उनको भी night ritual करके ही सोना रहता है. तो हम Wow. एक मतलब we have daily night ritual in our community. वो लोग सब Zoom link join करते हैं और सब एक साथ night routine करते हैं. Wow. Wow. I think now I want to ask that how people can connect with you, like especially women, you work for women, how they can join you, how they can connect with you. So very simple. मेरा फर्स्ट जो है मास्टर क्लास इनर वॉइस एक्टिवेशन वो मैंने फ्री रखा है ताकि वुमेन अवेयर हो सकें कि डू दे नीड, बिकॉज इट्स नॉट नेसेसरी ना कि मैं सबके लिए हूँ और वो सब मेरे लिए है. Right. Right fit in for each other or not. So first is the inner voice activation masterclass which is absolutely free. उसके बाद boot camp है. उस बूट कैंप में मैं उनको एक अलग लेयर और सॉल्व करवाती हूँ कि ठीक है एक बार अवेयरनेस पे आ जाए, फिर एक्सेप्टेंस पे आए, एंड देन फाइनली दे कैन ज्वाइन द रेडिएंट यू कम्युनिटी. सो जिसको भी ये इनर वॉइस एक्टिवेशन मास्टर क्लास ज्वाइन करना है, दे ऑल कैन गो टू माई पेज बायो पे. वहां पे मास्टर क्लास का लिंक है. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस मंथ आई एम नॉट डूइंग एनी मास्टर क्लास बिकॉज आई एम रिव्यूइंग एंड आई एम क्रिएटिंग मोर कोर्सेज क्योंकि 2025 आ रहा है. Right. अभी जो कम्युनिटी है उसको हैंडल करना, अभी हमारा समिट खत्म हुआ है. Yeah. So plannings. So next जब भी हो you will get the updates through my stories or you can join my WhatsApp group जो inner voice activation का है. वहाँ पे हम updates दे देते हैं. Wow, wow. So if you feel like you want to start your journey of self-love, definitely go. I have actually attended ma'am class, worth attending it. Go ahead. And and it was your first offline summit, na? Yeah. Congratulations. I saw the pictures. It was beautiful. No, you are looking so beautiful. That black and white combination dress, the second dress you wore. I saw beautifully. I loved it. Thank you so much, Trishti. Amazing. So now, ma'am, if you want to end with something, you want to tell your audience something from your side. I don't know, like I just wanted to say that अगर आप एक औरत बन के इस planet पे आए हो तो लाइफ ऐसे ही खत्म मत करो. वर्ल्ड नीड्स यू. गेट अप, रियली गेट अप. वर्ल्ड नीड्स यू. हम सब में कुछ ना कुछ अच्छा है. सी सोसाइटी ने मेन को ऐसा फोर्स किया है तो दे हैव टू वर्क at any cost. But I'm not talking about job, I'm not talking about any business, I'm talking what you really can change in yourself and on this planet. Wow. So please get up and do. यार ऐसे तो नहीं जाना चाहिए, ये मुझे जरूर रियल ऐसे Wow. तो नहीं. This is beautiful. Someone is asking, I want to join WhatsApp group, send link. Where they can find the link of The WhatsApp? link, the link is in my bio. Drishti. So Arvinda, you can just join the go to the ma'am bio Instagram ID पर you will find the link there. Perfect. Super profile. Welcome, sweet. Perfect. So thank you so much, ma'am. I think बहुत ज़्यादा हमें insights मिले about the self-love and definitely a lot of women are going to start. Someone is saying wonderful and magical words, Meenal ma'am. Thank Yeah, definitely it was thank so strong and positive. So thank you so much, ma'am, for joining the I live. We literally got a lot of insights. I really enjoyed with you, Drishti, and you are an amazing soul. Keep doing what you are doing, and just help everyone because really world needs women like you to come ahead and help. Thank you, ma'am. Thank you. We are good to end. Yeah. God bless. Bye bye. Bye bye. Thank you everyone for joining.